Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Hopefully everyone is fine. Today our topic is about ABO blood group system and blood transfusion from chapter 22 Inheritance for class 2nd year biology. Now first we discuss about the learning objective. Today we want to understand the ABO blood group system, in which we have to discuss about the antigens and their genetic basis, and also discuss about the relationship between the antigens and antibodies. Now at last we have also discussed about the blood transfusion, in which we have to discuss about the universal donor, universal recipient and blood transfusion model. Now first we discuss about the ABO blood group system. This ABO blood group system was first time discovered by the Karl Landstein in 1901, and this blood group system are also found in many other primates such as apes, chimpanzees, gorilla and etc. Now this ABO blood group system can be defined as when the special types of the antigens present on the surface of the red blood cells membrane, which is known as ABO blood group system, and there are several surface markers are present on the red blood cells membrane, which is referred as a antigen. This ABO blood group system is based on two types of antigens, that is antigen A and antigen B. If these antigens A and B are glycoprotein in nature, and if antigen A is present on the surface of the red blood cell, then the blood group is called as type A blood group. If antigen B is present, then the blood group is called as type B blood group. If the antigen A and B both are present on the surface of the red blood cell, then the blood group is called as type AB blood group. If there is no antigen is present on the surface of the blood group, then this type of blood group is called as type O blood group. So on the basis of the antigen, these groups are formed on the basis of A and B antigen. Now further we have to discuss with the help of this diagram. If you have seen that if the antigen A is present on this blood group, then this blood group is considered as A blood group or type A blood group. If this blood consists antigen B on the surface of the red blood cell, then this type of blood group is called as type B blood group. If both antigens A and B is present, then this is called as the AB blood group, type AB blood group. Now if there is no antigen is present, so then this type of blood group is called as O blood group, because they contain no antigen, that's why they are called as O blood group. So on the basis of antigen A and B, there are various forms of blood group is formed, and these are the groups which are based on the antigen A and antigen B. So further we have to discuss about the genetic basis of blood group system, which is first time explained by the Bernstein 1925. The blood group which is controlled by a single polymorphic gene I, this is the I which represent the gene allele, and that gene is polymorphic, that means that they are exist in different shape, that's why they are considered as polymorphic gene. And this I stands for the isohemoglutinogen. So when this I gene is responsible for the ABO blood group system,
and they are polymorphic gene. They have more than 2 allele partners. That is basically it consists of or exists in 3 forms, that is IA, IB and small I, and responsible for the ABO blood group system. In our previous lecture we have also discussed that if any trait is controlled by the more than 2 alleles, then this trait is considered as multiple allele, and in this trait basically controlled by more than 2 alleles, that's why this can be explained in multiple alleles. Now we have to move further. With the help of this diagram we have know that one gene comes from one parent and the other gene is come from another parent, and both genes combine together and they express and form the special protein and responsible for the specific trait. जब आपके पास एक पेरेंट से एक जीन आएगा, दूसरे पेरेंट से दूसरा जीन आएंगे और जाइगोट बनेगा, ये गैमेट फॉर्मेशन हुई है, और एक गैमेट पेरेंट से दूसरा गैमेट दूसरे पेरेंट्स आकर कंबाइन करेगा, तो उसकी वजह से हमारे पास जो ट्रेड्स हैं वो क्या मुख्तलिफ ट्रेड्स कंट्रोल होती हैं, और जिसकी वजह से हमारे पास मुख्तलिफ जो है वेरिएशंस अकर होती हैं। अगर तो हमारे पास दोनों होमोसेक्स कंडीशन के अंदर आ जाते हैं जीन IA जो जीनोटाइप है तो हमारा ब्लड ग्रुप A होगा। अगर हमारे पास हेट्रोसेक्स कंडीशन में आते हैं A और B, तो हमारे पास जीनोटाइप A और IA IB हो जाएगा और ब्लड ग्रुप AB बन जाएगा। बोथ आर एक्सप्रेस इन हेट्रोसेक्स कंडीशन, देन दिस इज द एग्जांपल ऑफ द कोडोमिनेंस। और आप इसको कोडोमिनेंस में भी क्या है, इसको कोट इस एग्जांपल को कोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगर हमारे पास हेट्रोसेक्स कंडीशन में एक रिसेसिव है और एक डोमिनेंट है I और IA, तो फिर उसके बाद आपके पास खाली A एक्सप्रेस होगा, IB में कोई और I है, फिर दोबारा AB एक्सप्रेस हो जाएगा, IB आ गया तो B ब्लड ग्रुप एक्सप्रेस हो जाएगा IB, और इधर आपके पास कोई एंटीजन मौजूद नहीं है इसलिए आपके पास B ब्लड ग्रुप एक्सप्रेस होगा। और फिर इसी तरह एट लास्ट आपके पास दोनों रिसेसिव फॉर्म में II जिसके पास कोई एंटीजन मौजूद नहीं है, I है ना A है ना B है, इसके पास कोई एंटीजन मौजूद नहीं है, तो आपके पास ब्लड ग्रुप O एग्जिस्ट करेगा। तो ये था इसका जेनेटिक बेसिस कि कैसे जो है ये हमारी जो जीन्स जो है कंट्रोल कर रहे हैं। बेसिकली ये मल्टीपल एलील्स में आता है, जिसको हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ भी चुके हैं, और हमने ब्लड ग्रुप सिस्टम को मल्टीपल एलील्स में डिस्कस भी किया है। और इसके अलावा क्या है, ये आपके पास मोर देन जो है 3 एलील्स प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई दे आर द पॉलीमॉर्फिक जीन। और उसके अलावा आपको ये बात भी याद रखनी है कि ये बेसिकली कोडोमिनेंस शो करते हैं, मतलब ये बहुत एक्सप्रेस इन होमोजाइगस हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर एक्सप्रेस करेंगे। हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या है कि एक गैमेट से A आया और दूसरे गैमेट से B आया, और जब दोनों कंबाइन किए तो इन दोनों ने एक दूसरे को सप्रेस नहीं कर सका, कोई किसी को भी सप्रेस नहीं कर सका, बल्कि दोनों कंबाइन इफेक्ट शो कर रहे हैं, बराबर का इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो ऐसे हम जो डोमिनेंस को क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस कहते हैं, जिसको हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। और ABO ब्लड ग्रुप जो आपके पास AB ब्लड ग्रुप है वो बेसिकली किसकी एग्जांपल है, कोडोमिनेंस की एग्जांपल है। तो ये तो था ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में, इसके जेनेटिक बेसिस के बारे में था। अब फर्दर हम जो है वो रिलेशनशिप इसका पढ़ेंगे कि जो ये एंटीजेंस प्रेजेंट है इनका एंटीबॉडीज़ के साथ क्या रिलेशनशिप है। अब आपने एंटीजेंस के बारे में तो आपने पढ़ लिया कि अगर एंटीजन A प्रेजेंट है तो आपके पास ब्लड ग्रुप A होगा, एंटीजन B प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप B प्रेजेंट होगा, अगर एंटीजन AB प्रेजेंट है तो आपके पास ब्लड ग्रुप AB होगा, एंड अगर एंटीजन कोई भी प्रेजेंट नहीं है तो आपके पास ब्लड ग्रुप O प्रेजेंट होगा। ये तो हम अभी अपने जो है अभी अपनी प्रीवियस स्लाइड्स में डिस्कस कर चुके हैं। अब जरा इन एंटीजेंस के जब आपके पास एंटीजन A जब प्रेजेंट होता है तो इसका मतलब यह है कि एंटीजन B क्या है, मिसिंग है। जब एंटीजन A प्रेजेंट है तो एंटीजन B क्या है, मौजूद नहीं है। तो वो आपके ब्लड के अंदर, ब्लड सीरम के अंदर जो है वो क्या बनेगा, एंटी
बी बन के एंटीबॉडीज जो मौजूद होंगी वो किसके खिलाफ मौजूद होगी, बी के खिलाफ मौजूद होंगी। इसका मतलब यह हुआ कि जब एंटीजन ए प्रेजेंट होता है तो एंटीजन बी के खिलाफ वो क्या बनाता है, एंटीबॉडीज बनाएगा। एंटीजन ए प्रेजेंट है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द एंटीबॉडीज अगेंस्ट द बी, और उसको क्या कहेंगे, एंटीबॉडी बी। तो ए ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीबॉडी बी मौजूद होगी। इसी तरह एंटीबॉडी जो है, एंटीजन अगर बी है, ब्लड ग्रुप बी है, दे आर मेकिंग द एंटीजन ए। सिमिलरली वे जब आपके पास ब्लड ग्रुप ओ है, ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, जब इसके अंदर एंटीजन प्रेजेंट ही कोई नहीं है, दैट्स मीन ये दोनों के खिलाफ क्या बनाएगा, एंटीबॉडीज बनाएगा। ए के खिलाफ भी एंटीबॉडी बनाएगा और बी के खिलाफ भी एंटीबॉडी बनाएगा, क्योंकि एंटीजन जो है वो अपने जो मुखालिफ ग्रुप है उसके खिलाफ क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाएगी। तो ये की पॉइंट है, आपने ये की पॉइंट हमेशा याद रखना है। अगर एंटीजन ए मौजूद है वो अपने मुखालिफ जो बी ब्लड ग्रुप है उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी। तो आपको हमेशा ये याद रखना आसान हो जाएगा कि ब्लड ग्रुप ए है तो इसका मतलब ये है एंटीजन ए मौजूद है और एंटीबॉडी बी मौजूद है। इसी तरह एंटीजन अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन कौन सी मौजूद होगी, आप फौरन आपको पता चल जाएगा एंटीजन इधर बी मौजूद है और एंटीबॉडी जो है ए मौजूद होगी। अब ब्लड ग्रुप ओ है, इसके पास तो एंटीजन मौजूद ही कोई नहीं है, इसके पास कोई भी एंटीजन मौजूद ही नहीं है, दैट्स मीन इसके पास एंटीबॉडी का दोनों के खिलाफ मौजूद है, ए के खिलाफ भी मौजूद है और बी के खिलाफ भी एंटीबॉडी मौजूद है। इसी तरह जो आपके पास ए बी ब्लड ग्रुप है उसके पास एंटीजन ए भी मौजूद है और बी भी मौजूद है। अब दोनों मौजूद है एंटीजन, तो ये अपने खिलाफ कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनाएगी, तो इसके पास कोई भी एंटीबॉडी मौजूद नहीं होगी। तो जारी बात है जब इसके पास कोई एंटीबॉडी जो है, जारी बात है इसके पास एंटीजन ए बी दोनों इसके पास मौजूद है, दैट्स व्हाई इसके पास ये क्या करेगी, अपने खिलाफ कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनाएगी, तो इसलिए इसके पास कोई भी एंटीबॉडी मौजूद नहीं होगी। एंड दैट इज द बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन द एंटीजन एंड एंटीबॉडी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस अबाउट द ट्रांसफ्यूजन प्रिंसिपल। और ये आगे जो है जब हम ट्रांसफ्यूजन प्रिंसिपल पढ़ेंगे, ट्रांसफ्यूजन ब्लड ट्रांसफ्यूजन पढ़ेंगे, तो उसमें हमारे पास ये कॉन्सेप्ट जो है ये बड़ा ज़रूरी है कि जब हम ब्लड को डोनेट या रिसीव करेंगे तो हमें उसकी एंटीबॉडीज़ और एंटीजन्स को कंसीडर करना होगा कि किसके पास कौन सी एंटीजन मौजूद है और वो किसके खिलाफ एंटीबॉडी बना सकती है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि अगर ब्लड ग्रुप ए मौजूद है तो किसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा, बी के खिलाफ। बी ब्लड ग्रुप मौजूद है तो वो किसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा, ए के खिलाफ। अगर ए भी ब्लड ग्रुप है तो वो अपने ए भी मौजूद है बी भी मौजूद है तो वो किसी भी ब्लड के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। ओ ब्लड ग्रुप है तो उसके पास ना एंटीजन ए ना एंटीजन बी है, तो उसका मतलब है ये दोनों के खिलाफ जो है एंटीबॉडीज बनाएगा, ए के खिलाफ भी बनाएगा और बी के खिलाफ भी एंटीबॉडी बनाएगा। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द एंटीजन एंड एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन द एबीओ ब्लड ग्रुप एंड दैट इज द रिलेशनशिप ऑफ द एंटीजन एंड एंटीबॉडीज इन ह्यूमन ब्लड ग्रुप। अब फर्दर जो है अब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन को डिस्कस करेंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैन बी डिफाइंड एज ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स इनटू द वन सर्कुलेटिंग इंट्रावीनियसली। जब हम किसी को क्या करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं या ब्लड किसी से रिसीव करते हैं, तो आपने देखा है कि ड्रिप के जरिए जब वो लगाते हैं, वीनस के अंदर ड्रिप लगाते हैं और ब्लड की ट्रांसफ्यूजन होती है ताकि जो है कि अगर कोई भी किसी को कोई मसला है तो उसके अगर ब्लड की कमी है ताकि उसकी ब्लड की कमी को पूरा किया जा सके। तो ब्लड को ट्रांसफरिंग का जो प्रोसेस है, द ट्रांसफरिंग ऑफ द ब्लड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब जो बंदा ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंपैटिबिलिटी मस्ट बी यूज। अब जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जो ब्लड की कंपैटिबिलिटी है कि कौन सा ब्लड हम किस ग्रुप को दे सकते हैं, उसको देखना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम देख के इसमें क्या कह सकते हैं कि द वन हु गिव्स द ब्लड इज कॉल्ड द डोनर एंड द वन हु रिसीव द ब्लड विच इज कॉल्ड एज अ रिसिपिएंट। तो एक हमारे पास डोनर होगा जो ब्लड को प्रोवाइड करेगा, जो ब्लड देगा, दूसरा हमारे पास रिसिपिएंट होगा जो ब्लड को रिसीव कर रहा होगा। तो और इसके अंदर हमने ब्लड कंपैटिबिलिटी को देखना लाजमी है कि ताकि जो है हम जो आपस में इनके दरमियान में किसी किस्म की भी एग्यूलेशन ना हो सके। उसका मतलब ये कि ब्लड जो है वो
आपस में रिएक्शन ना करे, जिसकी वजह से जो है उनके जो अंदर ब्लड सेल्स अगर रिएक्शन करेंगे तो जिसकी वजह से डिफरेंट रिएक्शंस अकर होने की वजह से उनकी स्किन में एचेस और किडनी फेलियर और मुख्तलिफ किस्म की कॉम्प्लेक्सेस हो सकती हैं। तो उससे बचने के लिए हमें कंपैटिबिलिटी देखनी पड़ेगी। तो अब हम इसे ज़रा फर्दर डिस्कस करते हैं कि द ब्लड ग्रुप ऑफ ओ ग्रुप हैज़ नो एंटीजन। ब्लड ग्रुप ओ के पास हम अभी प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर चुके हुए हैं कि इसके पास कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं होती, तो ये एगुलेशन पास नहीं कर सकता। मतलब ये जो है एगुलेशन का मतलब ये कि वो आपस में कोई प्रोटीन जो है वो रिएक्शन नहीं करेगी, उनके दरम्यान किसी किस्म की भी प्रोटीन जो है वो नहीं अगेंस्ट द प्रोटीन नहीं बनाएगी, एंटीबॉडी नहीं बनाएगी, जिसकी वजह से ओ ब्लड ग्रुप को हम किसी भी ब्लड ग्रुप वाले को दे सकते हैं। मतलब ओ ब्लड ग्रुप वाला पेशेंट या जो डोनर है, ओ ब्लड ग्रुप वाला डोनर जो है वो किसी को भी ब्लड ग्रुप दे सकता है। वो ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ओ को भी दे सकता है। तो ऐसे ब्लड ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर बोलेंगे। फर्दरमोर अगर हम बात करते हैं ए बी ब्लड ग्रुप की, तो हमें पता है कि ए बी ब्लड ग्रुप वाले के पास ए एंटीजन भी होती है और बी एंटीजन भी होती है। दैट्स व्हाई दे हैव नो एंटीबॉडी, क्योंकि ए बी एंटीजन होने की वजह से किसी किस्म की भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करता। जब ये एंटीबॉडी किसी किस्म की भी प्रोड्यूस नहीं करेगा, किसी की भी अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो ये ए का भी ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकता है, बी का भी ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकता है और ओ का भी ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकता है। जब ये ए बी और ओ दोनों का तीनों ग्रुप्स का रिसीव कर रहा है, ए बी का भी ब्लड ग्रुप अपना जो है बेसिकली ए बी अगर कोई है पर्सन वो भी इसको ब्लड ग्रुप दे सकता है, ये हर किस्म का ब्लड को क्या कर सकता है? रिसीव कर सकता है। तो दैट्स व्हाई इस ऐसे ब्लड ग्रुप को हम यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहेंगे। तो जो पर्सन ए बी ब्लड ग्रुप के साथ होते हैं वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट होते हैं। जो पर्सन जो है ओ ब्लड ग्रुप के साथ होते हैं वो यूनिवर्सल डोनर होते हैं। वो हर किसी को ब्लड ग्रुप दे तो सकते हैं, क्योंकि उसकी रीज़न क्या है? उनके पास जो है वो किसी किस्म की एंटीजन मौजूद नहीं होती, और ये इसलिए जो है वो रिसीव ए बी ब्लड ग्रुप इसलिए रिसीव कर सकते हैं क्योंकि इनके पास किसी किस्म की एंटीबॉडी मौजूद नहीं होती। तो ये तो था यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसिपिएंट के बारे में। अब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन मॉडल को डिस्कस करते हैं कि बेसिकली जो आपके पास ओ ब्लड ग्रुप है, ये जो ओ ब्लड ग्रुप है आपको एरोस नजर आ रहे हैं, ये बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ए को भी ब्लड ग्रुप दे सकता है। तो ये आपके पास क्या हो गया, जिसको हमने अभी पहले कहा कि ये यूनिवर्सल डोनर होगा। इसी तरह जो बी वाला वो ए बी को भी दे सकता है, बी और ए बी वाला जो है ए बी को भी मिल जाएगा और ओ वाले से भी क्या आपके पास इधर ये ब्लड ग्रुप आ जाएगा। तो ए बी वाला जो है वो सबसे क्या कर सकता है? रिसीव कर सकता है। तो जो इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल जो है रिसिपिएंट कहेंगे। अगर आप देखें तो आपको ये एरो से वापस जाते हुए नहीं नजर आ रहे, इसका मतलब ये है कि ए बी वाला जो है वो बी को ब्लड ग्रुप क्या नहीं दे सकता, इसी तरह ए बी वाला ए को ब्लड ग्रुप नहीं दे सकता। अलबत्ता इसी तरह ए वाला जो है वो ओ को ब्लड ग्रुप नहीं दे सकता, बी वाला ओ को ब्लड ग्रुप नहीं दे सकता, ए बी वाला ओ को ब्लड ग्रुप नहीं दे सकता। तो जिसकी वजह से क्या है कि सिर्फ इसको ओ वाला ब्लड ग्रुप ही चाहिए, इसको बी वाला ब्लड ग्रुप भी चाहिए, इसको भी क्या ए वाला ब्लड ग्रुप ही चाहिए। खाली ए बी वाला ऐसा जो सबका ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकता है, और ये जब देने की बारी आएगी तो सिर्फ ए बी वाले को ब्लड ग्रुप को दे सकता है। तो दिस इज द ब्लड ट्रांसफ्यूजन मॉडल, जिसके अंदर हम कंपैटिबिलिटी को चेक करते हैं कि कैसे कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दिया जा सकता है और कौन सा ब्लड ग्रुप रिसीव किया जा सकता है। तो हमारे पास जो इसके मुताबिक जो है यूनिवर्सल डोनर जो आता है वो ओ ब्लड ग्रुप है, और यूनिवर्सल रिसिपिएंट जो है वो ए बी ब्लड ग्रुप आता है। और इस फिनोमिना को या इस मॉडल को हम क्या कहते हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूजन मॉडल कहेंगे। फर्दर जो है हम इसको डिस्कस करते हैं कि अगर इनकम्पैटिबिलिटी हो जाती है ड्यू टू ट्रांसफ्यूजन होगी और वो क्या करेगा, इनकम्पैटिबिलिटी मिसमैच ब्लड ग्रुप लग जाए,
तो रिएक्शन जो है वो अकर करेगा, उसकी वजह से आपको फीवर भी हो सकता है, स्किन डिसऑर्डर भी हो सकता है, इचिंग भी महसूस होगी, और अगर रिएक्शन हो जाए तो रेनल फेलियर, शॉक और डेथ भी काज हो सकती है, क्योंकि क्या होती है ब्लड की एक्यूलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से आपको ये जब रिएक्शन अकर होगा तो उसकी वजह से आपकी जो बॉडी के अंदर डिफरेंट जो है उसके नतीजे में जो है रिस्पॉन्स आएंगे, जिसकी वजह से आपको फीवर भी होगा, स्किन डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, रेनल फेलियर भी हो सकता है अगर जो स्वेयर रिएक्शन हो जाए, और जिसकी वजह से डेथ काज हो सकती है। तो ये तो इनकम्पैटिबिलिटी के नतीजे में था कि उसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं कि अगर आपके पास जो है मिसमैच ब्लड ग्रुप अटैच होते तो उसकी वजह से आपकी बॉडी जो है रिस्पॉन्स करती है, और उसके नतीजे में आपको आपकी बॉडी के अंदर जो है मुख्तलिफ किस्मों के जो है ना एक्शन वो रिस्पॉन्सेस शो होंगे, जिसमें आपका फीवर है, स्किन में रैशेस हो सकते हैं, और इसी तरह जो है अगर स्वेयर आ जाए तो रेनल अटैक या रेनल फेलियर जिसको हम कहते हैं, या शॉक या डेथ भी काज हो सकती है। तो ये तो था इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में। फर्दर अब हम इसको ज़रा डायग्राम से डिस्कस करते हैं कि आप जो हमने सारा जो आज ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ा उसको हम अगर एक टेबल की फॉर्म में समझना चाहे तो हम कैसे उसको हम कैसे कर सकते हैं, सम अप कैसे कर सकते हैं कि अगर हमारे पास ब्लड ग्रुप ए भी है तो इसका मतलब है एंटीजन ए बी दोनों मौजूद है, एंटीबॉडी कोई मौजूद नहीं है, तो ये क्या है खाली ये जो कैन गिव द ब्लड टू, सिर्फ ये ए बी को ब्लड ग्रुप देगा, बाकी सबसे रिसीव कर लेगा। इसी तरह ए ब्लड ग्रुप है तो ये सिर्फ एंटीजन ए मौजूद है, एंटीबॉडी बी प्रोड्यूस करेगा। ये जो है ब्लड ग्रुप जो है वो किन से को कैन गिव, ये ए और ए बी को दे सकता है, लेकिन जो रिसीव सिर्फ ओ और ए से ले सकता है। बी वाला जो है वो इसके बाद एंटीजन बी है, ए के खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा तो बी और ए बी वाले को दे तो सकता है, रिसीव सिर्फ बी और ओ से कर सकता है। और ओ वाला जो है उसके पास है एंटीजन तो कोई मौजूद नहीं है, दोनों के खिलाफ एंटीजन बनाता है, इस वजह से सबको तो ब्लड ग्रुप दे देगा, लेकिन ये रिसीव सिर्फ ओ से करेगा। तो ये तो था अबाउट द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में जो आज हमने डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट टाइम जो है अब हम आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम को पढ़ेंगे। थैंक यू।